Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we will solve the MCQ based on the heat and temperature and thermal expansion. Okay, and this topic is really extremely prominent for the exam point of view. I will especially talk about the Air Force exam. Okay, in case you are just preparing for Air Force, Navy, NDA, any of them. Okay, then this video is really gonna be useful because this at least one question from this topic is definitely asked, so we cannot ignore it. Okay, if you are just preparing for any of them, then 100% this video is beneficial for you. Okay, and you don't visit to any other channel because this video is sufficient. Okay, and I would like to say one more thing about this topic. Regarding this topic, okay, we should solve the MCQ after studying the conceptual information. Okay, because conceptual, if we have a strong conceptual information, then 100% we will be easily capable to crack such kind of question. Okay, well, I will also share the explanation each and every question of each and every questions. Okay, so remember this, always make it a habit to solve the MCQ after studying the conceptual plus numerical. All right, and you know MCQ is the combination of conceptual and numerical as well. Okay, so without getting late, let's come to the point. So first question is, a kilocalorie, what is the value of 1 kilocalorie? Okay, so 1 kilocalorie, if we remove the kilo, that we prefix 10 raised to power 3 comes, and 1 calorie equals to 1.48 joule. Okay, if we arrange the data, then 4.18 into 10 raised to power 3 is the required answer. Alright, so now check the option. Option B is the correct answer. Okay, now second question. Sorry, let us take a bruise. Okay, what is the second question? 0 केल्विन पैमाने का मान होता है. Okay, so 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने का मान होता है. ओके, सो 0 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर. देखो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी डिग्री सेल्सियस डेटा दिया गया, अगर उसे केल्विन में कन्वर्ट करता है 273 प्लस किया जाता है. ओके, इफ बी प्लस 273 देन इट कन्वर्ट इनटू द डिग्री केल्विन स्केल. ओके, सो 273 केल्विन इज अ रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन बी. ओके ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में अगर 273 क्या कर दें, प्लस कर दें, तो वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री केल्विन स्केल में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध है. ओके, सो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो संबंध होता है फ्रेंड्स, डिग्री सेल्सियस ओवर 5, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 over 9. Okay, this is the exact relationship between degree Celsius and degree Fahrenheit. Okay, now we are seeing the options. Degree Celsius equal to, then here we transfer the terms 5 or further we, so then we will get degree Celsius equal to 5 over 9 bracket inside degree Fahrenheit -32 is the required answer. Okay, so if we observe the option, then we will get option V is a required answer. Okay, option V is a required answer. Okay, now फोर्थ क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. न्यूनतम संभव ताप है. ओके, सो जैसे कि जानते हैं न्यूनतम संभव ताप यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे टेम्परेचर को मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है, उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं. वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर हिंदी में बात करें, ओके, इन केस वी टॉक अबाउट इन हिंदी, देन वी विल से परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है क्या, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो हमेशा ही किस में, केल्विन में मेज़र किया जाता है. और परम ताप भी एक ऐसा ताप होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा. ओके, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा कि ऐसा कौन सा ताप है जो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो याद रखिएगा परम शून्य ताप एक ऐसा ताप होता है जो केल्विन में मेजर किया जाता है, साथ ही साथ हमेशा पॉजिटिव होता है. क्यों? क्योंकि परम शून्य ताप की जो स्टार्टिंग है वो 0 केल्विन से होती है. ओके, और परम शून्य ताप को हमेशा केल्विन पैमाने में ही मेजर किया जाता है. तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं. ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और ये हमेशा केल्विन में मेजर किया जाता है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि परम शून्य ताप क्या है. ओके, याद रखिएगा, परम शून्य ताप बोलूँ या फिर न्यूनतम संभव ताप बोलूँ, एक ही बात है. ओके, तो न्यूनतम संभव ताप होता है 0 केल्विन. ओके, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस. ओके,
तो याद रखिएगा 0 केल्विन से नीचे कभी भी टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता है। सेम भी -273 या 0 केल्विन बोले या फिर -273 बोले, बात है कि ओके। तो अब अगर ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ऑप्शन सी क्या है हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए -273 केल्विन दे रखा है। तो याद रखिएगा अगर केल्विन में होगा तो 0 केल्विन होगा। ओके, और डिग्री सेल्सियस में बताएंगे तो -273 होगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने सिमिलर क्वेश्चन रख दिए हैं। ओके, याद रखिएगा तो परम शून्य ताप या फिर न्यूनतम संभव तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर -273। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा सा और बता दें एक्स्ट्रा नॉलेज से। जो हमारे टेम्परेचर की जो डिफरेंट स्केल होती हैं वो 4 होती हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन एंड डिग्री र्यूमर। ओके, ये 4 डिफरेंट टाइप हमारी क्या टेम्परेचर स्केल होती हैं। अब यहाँ पे बात करें हम आपसे, अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक और बात करें बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। ओके, तो डिग्री सेल्सियस में जल का जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो 212, दैट मीन्स 212। ओके, केल्विन में बात करें तो 273 होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373। ओके, और डिग्री र्यूमर में बात करें तो 0 र्यूमर होता है और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें होता है 80 डिग्री र्यूमर। ओके, 80 लिखा हुआ है। ओके, सो इस चार्ट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आप चाहे किसी का भी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो आपको आना चाहिए। ओके, नाउ इसमें पूछा क्या था, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा बैक कर लेते हैं। ओके, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है। तो केल्विन पर जल का फ्रीजिंग हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273, यानी ऑप्शन सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस ताप पर डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के समान पाठ्यांक होते हैं। तो याद रखिएगा एट -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देते हैं। ओके, किस टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, दिस इज रियली एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन every type of technical exam. Alright, so we cannot ignore it. Just take a screenshot and mug up it. Okay, अब आप सोच रहे कैसे, ठीक है, तो कैसे अगर आपको क्यों का जवाब चाहिए कैसे है तो ये भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, वाई भी आप भूल भी गए, देखिएगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोगों ने जो रिलेशंस पढ़ा था वो क्या था, डिग्री सेल्सियस ओवर 5, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। ओके, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल है ना, तो वो आगे रख देंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9c = 5c माइनस का इसे 5 2 10 एंड 5 3 15 और 16। ओके, सो अगर ये 5c को इधर ले आए तो कितना बचेगा 4c = माइनस का 160। फर्दर सॉल्व करेंगे चच्चू को 16 है माइनस का 40 आ जाएगा। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, आई होप लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, सो होप यू अंडरस्टैंड। Still you have a query this question, then you can ask in the comment box, but definitely I'll reply your questions. Okay, now next question is, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो हीट एंड टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% होते हैं वो हो क्या, वो होता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल। जो मेरी टेम्परेचर स्केल होती है उसमें कन्वर्जन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद 3 बार एग्जाम दिया है, एक क्वेश्चन 2 बार मुझे देखने को मिला है इस टॉपिक से। ओके, तो आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। ओके, सी ऑक्सीजन -180 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होती है, तो यह ताप है। यानी कि मैंने आंसर में जब देखा ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि सारे ऑप्शंस डिग्री फ़ारेनहाइट में। इनडायरेक्टली ये बंदा पूछना चाह रहा है कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या कीजिए कन्वर्ट करना है। ओके, तो कन्वर्जन से क्वेश्चन है, देखिएगा डिग्री सेल्सियस ओवर 5 = डिग्री फ़ारेनहाइट -32
होल डिवाइडेड बाई 9। ओके, तो हमें डिग्री सेल्सियस वाला डेटा कितना दिया है, माइनस का 180, कितना दिया है, माइनस का 180। ओके, तो माइनस का 180, देखिए इसी में समझा देते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस की जगह माइनस का 180 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 36 टाइम कटेगा, 36 टाइम उधर जाएगा, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 292 डिग्री फ़ारेनहाइट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पे होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इतना तो आता ही होगा। ओके, अगर फोर्सी या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 7 हैज़ completed. Now let us move on क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, H2 का घनत्व किस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, दिस इज रियली एक्सट्रीमली फेवरेट क्वेश्चन फॉर माइन। ओके, देखिए मैंने इसे फेवरेट क्वेश्चन क्यों कहा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि याद रखिएगा, MCQ सॉल्व करने की ताकत सभी की नहीं होती है। ओके, जिसके स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कॉन्सेप्ट, वही उसको इसको MCQ सॉल्व कर पाने कैपेबल है, अदरवाइज याद करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, हीट एंड टेम्परेचर में जल का असामान्य प्रसार। जल का, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे 80% चांसेस होते हैं इस टॉपिक से बनने के। ओके, जल का असामान्य या फिर असंगत प्रसार, ये वाला टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, असामान्य प्रसार यानी कि अनयूजुअल या फिर एनोनिमस बिहेवियर ऑफ द वाटर। ओके, तो ये होता क्या है, तो याद रखिएगा जल के असामान्य प्रसार के बारे में बता दें आपको। सी एक्चुअली होता क्या है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम का जो वाटर होता है, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इनिशियली डिक्रीज होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। जबकि उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, इन्हेंस करती है। ओके, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम इस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं, तो इसका जस्ट रिवर्स होने लगता है। फिर क्या होता है, वॉल्यूम फिर क्या इन्हेंस करने लगता है, और जबकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ओके, तो ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है। एक्चुअली जब किसी, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, थोड़ा आपको इमेजिन करवाते हैं सो दैट आपको फीलिंग आए। आपने कोई कंटेनर लिया, कंटेनर मतलब कोई भी बर्तन लिया है ना, और उसमें आपने वाटर फिलअप किया। वाटर फिलअप करने के बाद आप देखते हैं, जब उसे आपको किसी भी बीकर किसी पे या गैस पे हम उसे हीट करते हैं, तो होता क्या है, इनिशियली 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, इसमें मतलब ज़्यादा कम नहीं होता है, लेकिन कम होता है। सपोज आपका कंटेनर पूरा भरा हुआ है। ओके, तो कुछ ना कुछ उसका वाटर लेवल नीचे आ जाता है थोड़ा का। क्यों आता है, क्योंकि इनिशियली होता क्या है, जो कंटेनर का जो बॉटम है, इनिशियली वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हल्का सा जो नीचे का बॉटम वो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, और वाटर लेवल तो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे, बहुत बारीक सा आता है। ठीक है, फीलिंग होता है, मतलब ज़्यादा महसूस नहीं होता हम लोगों को, तो इसलिए, लेकिन होता है, ये श्योर है। ओके, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो जल के असंगत व्यवहार या असामान्य व्यवहार, यानी कि क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम का जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है, इनिशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि रिड्यूस होता है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, इन्हेंस करती है, यानी कि बढ़ती है। ओके, और जब 4 डिग्री से जैसे ही हम बढ़ाते हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता है, अगेन क्या होता है, इन्हेंस करता है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ओके, अब आप सोच रहे हो कि वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या, थोड़ा और बता दें आपको। सी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, और मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और याद रखिए, मैं आपको बहुत की पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद जिसमें जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स नहीं पता है ना फिजिक्स में, देन उसे पूरी फिजिक्स नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बता दें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है क्या है, इधर में आप देख रहे हैं ना, वॉल्यूम नीचे है और डेंसिटी क्या ऊपर है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी। ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स। ओके, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ओके,
तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है। एक बार फिर बताते हैं, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, और जबकि डेंसिटी क्या होती है, इन्हेंस करती है। ओके, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे हम टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, इन्हेंस करता है, और इसके बाद डेंसिटी क्या अगेन क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है। ओके, अच्छा, ये तो था डिग्री सेल्सियस पैमाने में। क्या इन्होंने डिग्री सेल्सियस में पूछा, नहीं, इन्होंने और घुमा दिया। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, कि हम लोग पढ़ते थे, अभी तक पढ़ते हैं कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से थोड़ा और बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किस टेम्परेचर पर जल का वॉल्यूम मिनिमम होता है, किस टेम्परेचर पर, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस टेम्परेचर पर आ गया ब्रूस। ओके ओके, अरे ब्रूस कहाँ गया भाई। ओके, किस टेम्परेचर पर जल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम, वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, याद रखिएगा। ओके, अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो ओबियसली डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हम वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि भाई वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑलराइट, नाउ अब देखिएगा, हम लोगों ने जो पढ़ा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो जल को तो H2O कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। तो जल का जो घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 4 डिग्री पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन भाई साहब ने, इन्होंने क्या डिग्री सेल्सियस में ना देखिए डेटा, किस में दे दिया, डिग्री फॉरेनहाइट में। क्यों, उन्हें तो बच्चे एलिमिनेट करने, ठीक है, कुछ तो घुमाएगा, है ना। तो इन्हें 4 ऑप्शन, यानी कि अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मैंने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट के बीच यही तो फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले की सहायता से, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 पुट करके जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है, 39.2। तो ये आपको रट लेना है, क्या रट लेना है, देखिएगा कि किस टेम्परेचर पर जल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मैक्स होता है, सॉरी डेंसिटी मिनिमम होती है, माफ़ कीजिएगा, किस टेम्परेचर पर जल का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है ना। तो किस टेम्परेचर पर होता है, देखिएगा सारी पॉसिबिलिटी बता दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो याद रखिएगा, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं, एट 4 डिग्री सेल्सियस जल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्स होती है। ओके, और 4 डिग्री सेल्सियस अगर मैं फॉरेनहाइट पूछूं तो आपको बता देना चाहिए 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर मैं केल्विन में पूछूं तो डिग्री सेल्सियस में कितना है, 273 प्लस कर दें तो 277 केल्विन, 277 यानी कि 272 केल्विन पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मैक्स होती है। ओके, आप चाहे वो डिग्री सेल्सियस में पूछे, चाहे डिग्री फॉरेनहाइट में पूछे, चाहे डिग्री केल्विन में। ओके, I hope you will be able to solve all the 3 possibility if the question is asked from this topic. ओके, तो याद रखिए कि जल का, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हीट एंड टेम्परेचर में 2 जगह का क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनेगा क्या, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, जल के असामान्य प्रसार से। ओके, तो इनको आपको रट लेना है, ठीक है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। मैं रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रटने से होता है कि अगर चीज़ें याद रहती, याद हो जाएंगी तो क्या हमें टाइम क्या होता है, सेव हो जाता है। ओके, भले उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो पता होना चाहिए। ओके, मैं उसके विरुद्ध मतलब अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि क्या कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक ये तो होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ हमें कुछ रिजल्ट याद भी होने चाहिए। ओके, मैं तो यही करता हूँ, ज़्यादातर मुझे इसके पीछे का लॉजिक पता होता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ों की कर लेंगे, रिजल्ट एज ए रिजल्ट याद कर लेते हैं। ओके, इससे क्या टाइम क्या होता है, सेव होता है हम लोगों का। ओके ओके, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। ओके, और फ्रिक्वेंटली मैं भी यही पूछता हूँ अगर किसी क्वेश्चन पूछना हो तो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 कैसी बोला, किसी भी छड़ को गर्म करने पर होने वाला प्रसार निर्भर नहीं करता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हियर वी हैव सीन द वर्ड नहीं, मतलब डिपेंड नहीं करता है। अगर हम किसी भी रॉड को
हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें होने वाला जो एक्सपेंशन होता है वो डिपेंड नहीं करता है। मैं एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, याद रखिए, मुझे नहीं लगता आपको कोई ये सब बताएगा कि हाँ ये मैं ये साथ बात है कि साथ कैसे हो कि ये वाली चीज़ों में बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, ओके, पूरी यूट्यूब पर, ठीक है। याद रखिएगा पहली चीज़ कि डिफेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया है, ओके, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जो रियलाइज़ किया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ओके, कि एक क्वेश्चन निर्भरता पर आधारित 100% पूछा जाता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन निर्भरता पर आधारित पूछा जाता है, ओके। और दूसरा एक तो होता है प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित, यानी कि कोई भी क्वांटिटी है किन किन चीज़ों पर, जैसे साउंड की जो वेलोसिटी है किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, ओके। और साउंड की वेलोसिटी कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, जैसे लाइक टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है ना डेंसिटी भी इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है, और साथ ही साथ उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है ना एटमॉस्फेयर की वो भी इम्पेक्ट करती है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो इफेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला मैंने बताया निर्भरता पर आधारित क्वेश्चन, और सेकंड थिंग मैंने जो बताई आपको वो क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित। तीसरा क्वेश्चन और बता दें कहाँ से बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है अनुक्रमानुपाती या फिर समान व्युत्क्रमानुपाती पर आधारित क्वेश्चन। 3, और ये तो फिर हर कोई बता देगा, एक विमा से पूछा जाता है ना, और एक मात्रक से भी पूछा जा सकता है। तो और एक मतलब कुछ नियतांक जो फिक्स वैल्यू होती है, जैसे एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 × 10⁻30 सेकेंड, है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। सो याद रखिएगा एक क्वेश्चन 100% निर्भरता पर अब डिपेंड कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है, ओके। तो निर्भरता पर आधारित क्वेश्चन आपको थोड़ा फोकस, जैसे निर्भरता पर आधारित होगा तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, ओके। सो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी तक जो हम लोगों ने ये 1 to 8 क्वेश्चन जो सॉल्व किए वो हीट एंड टेम्परेचर पे बेस्ड थे। किस पर बेस्ड थे? हीट एंड टेम्परेचर पर। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है, अब वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड है, ओके। तो हीट एंड टेम्परेचर एक खुद में एक चैप्टर होता है, ओके, और थर्मल एक्सपेंशन भी एक खुद में क्या है, चैप्टर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या। देखिएगा याद रखिएगा थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है। स्ट्रक्चर में बताऊँगा बहुत ही आसान शब्दों में कि कोई भी अगर सॉलिड है, ओके, पुरुष थोड़ा छोटा कर लें, ओके, कोई भी सॉलिड है, जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने का मीन्स क्या है, हम लोगों ने एनर्जी प्रोवाइड की, हीट बोले तो एनर्जी। तो हीट प्रोवाइड करने से होता क्या है कि उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। थोड़ा एज्यूम भी करते चलिएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि इनडायरेक्टली उसकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टेम्परेचर बढ़ा यानी कि क्या, जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई, है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो उस पार्टिकल की वाइब्रेशन बढ़ेंगे, पहले वाइब्रेट तो पहले भी कर रहे होंगे ना। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पहले की अपेक्षा उनके क्या होंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो उनके जो कॉलिजन होंगे, कॉलिजन रेट, कॉलिजन एक दूसरे से पहले यानी कि संघट्ट यानी कि टकरा भी रहे होंगे। तो जब उसकी वाइब्रेशन स्पीड यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो कॉलिजन्स भी बढ़ेंगे, वो भी इसलिए बात है, ठीक है। जैसे कॉलिजन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी एक्सपेंड करेगी, ओबियसली करेगी कि नहीं। तो बॉडी हमारी क्या कर जाएगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जैसे बॉडी एक्सपेंड कर गई तो इसी को हम, इस फिनोमेना को पूरे को नाम दे देते क्या, थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट, ठीक है। हीट देने पर जो एक्सपेंशन होता है उसे कहा जाता है क्या, थर्मल एक्सपेंशन। आई रिपीट वंस मोर, ओके। इफ वी प्रोवाइड हीट ऑफ एनी बॉडी टू एनी बॉडी देन temperature of that body increase, okay. If temperature, that means the kinetic energy of the particle increase, kinetic energy of the particle increase, then vibration increase, then collisions between two particles increase, okay. If the collisions between two particles increase, then the average gap between two particle increase. यहाँ पे एक मैंने नहीं लिखा है एवरेज गैप, इसके कॉलिजन्स के बाद लिख लीजिएगा, एवरेज गैप बिटवीन टू पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि जो दो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, याद फील रखिएगा, ठीक है। पार्टिकल हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, एज यू नो, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। याद रखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच में जो एवरेज गैप होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, ओके। ये भी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है, याद रखिए एवरेज गैप बिटवीन टू पार्टिकल, ओके।
तो दो पार्टिकल के बीच में जो एवरेज गैप होता है फ्रेंड्स वो होता है कैसी, एक्चुअली ये गैप जो माना गया है वो 10⁻⁻10 मीटर माना गया है. दिस कैन बी रिटन एज 1 एंगस्ट्रॉम. ओके, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, नियरली 1 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो एवरेज गैप बिटवीन कितना होता है, -10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो जब वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो एवरेज गैप बढ़ेगा, एवरेज गैप बढ़ गया तो ओबियसली बॉडी क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है. ओके, अच्छा, फिर आपने टाइप ऑफ एक्सपेंशन भी पढ़े होंगे. ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ओके, आफ्टर दैट यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. ओके, तो आपने जब पढ़ा होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट जब पढ़े होंगे आपने. ओके, देखिएगा, एक तो आपने अल्फा पढ़ा हुआ है ना, अल्फा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होंगे क्या, डेल्टा एल ओवर एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. ओके, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस. क्यों, लेंथ से लेंथ कैंसिल और टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस. ओके, इसी प्रकार आपने बीटा का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा क्या, चेंज इन टेम्परेचर ओवर ए इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. सेम बेस का भी जो यूनिट होता है क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस. इसी प्रकार जो गामा होता है, गामा क्या होता है, डेल्टा बी ओवर बी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर, उसका भी यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस. ओके, अच्छा, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है फ्रेंड्स, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों में कभी कभी क्या रिलेशन भी पूछ लिया जाता है. इनके बीच में रिलेशन होता है वो क्या 1:2:3 होता है. ओके, अगर ओनली अल्फा तथा बीटा में पूछे तो स्टार्टिंग के दो ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1:2. अगर बीटा एंड गामा पूछे तो लास्ट के दो ले लेंगे क्या 2:3. सेम भी गामा और अल्फा में पूछे तो क्या हो जाएगा 3:1. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, याद रखिएगा, जो अल्फा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके, अच्छा, तो बीटा बराबर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एंड गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. ये तीनों की जो वैल्यू है, इन तीनों की जो वैल्यू डिपेंड ऑन व्हाट, नेचर ऑफ सब्सटेंस. किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सब्सटेंस. ओके, ये तीनों की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू की सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है. ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. ओके, अच्छा, थोड़ा और बता दें, देखिएगा थर्मल एक्सपेंशन के बारे में. यहाँ पे जो आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, इनक्यूजिटिव होते हैं जानने के लिए कि अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल कहाँ से आया, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे. देखिएगा, जब हम किसी भी बॉडी में टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तो उसमें जो चेंज होने वाली जो लेंथ होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. एल इनिशियल पर डिपेंड करती है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, और सेकेंड थिंग किस पर निर्भर करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे. क्यों, अगर कम लंबी होगी, इनिशियल लेंथ कम होगी तो कम चेंज होगा लेंथ, है ना, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा. ओबियसली आप लोग खुद सोच सकते हो. ओके, कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम चेंज लेंथ होगी, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओबियसली क्या होगी, ज़्यादा लेंथ चेंज होगी. ओके, इक्वेशन नंबर 2, जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या पाते हैं, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. ओके, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में अल्फा आ जाएगा. ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेम है. ओके, एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से अल्फा की जब वैल्यू निकाली, ये वाला डेटा इनटू में कहाँ जाएगा, डिवाइड में. ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाते हैं क्या, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. इसकी यूनिट की बात करें तो क्या, पर डिग्री सेल्सियस. ओके, इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बीटा. ओके, बीटा में क्या, जो चेंज होने वाला जो एरिया होता है वो इनिशियल एरिया पर डिपेंड करता है. ओके, और साथ ही साथ वो चेंज इन टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है. जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो फर्दर हम लोग क्या पाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या बीटा आएगा, और बीटा की मल्टीप्लाइड में ये होगा, ये वाला इंटू वाला डेटा कहाँ चलेगा, डिवाइड में. ओके, तो फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं फ्रेंड्स, बीटा इक्वल्स टू चेंज इन एरिया ओवर ए इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा, देन पर डिग्री सेल्सियस. ओके, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री केल्विन. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसे यूनिट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस भी होती है और डिग्री केल्विन भी होती है, दोनों ही होती है. ओके, चाहे डिग्री सेल्सियस लिख भी सकते हैं, चाहे डिग्री केल्विन भी लिख सकते हैं. सो ये अच्छा, थोड़ा और बता दें, देखिएगा इसी प्रकार फॉर्मूले निकलते हैं. एल फाइनल का फॉर्मूला होता है क्या, ठीक है, तो याद रखिए एल फाइनल का फॉर्मूला होता है एल इनिशियल, यानी कि इनिशियल में एल इनिशियल लंबाई थी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद एल फाइनल कितना हो जाता है, कितना बढ़ा. ओके, तो एल फाइनल निकाल लें, यानी कि अंतिम लंबाई क्या होती है, एल फाइनल बोले तो अंतिम लंबाई, एल इनिशियल बोले तो प्रारंभिक लंबाई. ओके, तो एल फाइनल का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. क्या होता है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. ओके, अच्छा, इसी प्रकार आपसे पूछें कि सॉरी हाँ, ए फाइनल का फॉर्मूला क्या होता है ए इनिशियल टाइम्स ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एल्फा डेल्टा टी. ओके,
इसी प्रकार आपसे बी फाइनल यानी कि वॉल्यूम जो फाइनल अंतिम वॉल्यूम होता है, अंतिम आयतन में उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इनिशियल कोष्टक में 1 प्लस थ्राइस ऑफ एल्फा डेल्टा टी। ओके, तो इस प्रकार से एल फाइनल यानी कि अंतिम लंबाई, ए फाइनल मतलब अंतिम क्षेत्रफल और बी फाइनल मतलब अंतिम आयतन निकाला जाता है। ओके, अच्छा, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है दिमाग में एल फाइनल आया कहाँ से, ठीक है, मतलब इसे भी ड्राइव मतलब कुछ लोग चाहते हैं यार ये आया कहाँ से, ये भी शायद हम प्रूव कर लेते हैं ना, सो दैट हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है दूसरे से थोड़ी बेटर होती है ना, तो रटने को तो फिर इसके पीछे लॉजिक कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, ड्राइव करना है तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिएगा एल फाइनल का फॉर्मूला कहाँ से आया। सी हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो डेल्टा एल होता है, देखिएगा चेंज इन लेंथ जो होती है वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है। कितने चीज़ों पे, एक तो होता है एल इनिशियल और एक चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अच्छा, यहाँ से आपको ये भी पता है कि डेल्टा एल अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आते तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट रूप में क्या लगा, अल्फा आ गया। ओके, अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी। क्या मैं डेल्टा एल को एल फाइनल माइनस एल इनिशियल लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ओके, तो अल्फा टाइम्स ऑफ एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो एल फाइनल को इधर ही रखें, एल इनिशियल को इधर भेजेंगे, एल इनिशियल ऑलरेडी इधर में तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओके, इस प्रकार से ये सॉल्व होता है, ऐसे आता है। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग ड्राइव कर सकते हैं क्या, ए फाइनल। ओके, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वेल चलिए आप एमसीक्यू पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आफ्टर दैट रीड ऑल द 4 ऑप्शंस केयरफुली एज वेल। ओके, किसी छड़ को हीट करें यानी किसी भी रोड को अगर हीट करते हैं तो उसमें होने वाला एक्सपेंशन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने बताया तो जो अल्फा, देखिए प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है, हाँ करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे हाँ करता है, इनिशियल लेंथ पे हाँ करता है। तो इनमें से कोई नहीं इज ए रिक्वायर्ड आंसर। क्यों, क्योंकि अल्फा एक अल्फा ही ले लेते हैं। देखिएगा तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो मैंने फॉर्मूला बताया था डेल्टा एल ओवर एल इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा एल पे निर्भर करता है एक्सपेंशन, हाँ करता है। ओके, डेल्टा एल पे भी निर्भर करता है, एल इनिशियल यानी प्रारंभिक लंबाई पे और तापमान वृद्धि पर भी निर्भर करता है। ओके, और जो अल्फा निकल के आता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति मतलब पदार्थ किस टाइप का है। ओके, यानी कि छड़ के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा आंसर। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, ऑलराइट, नाउ इसमें क्या बोल रहा है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है ना। तो ये मैंने अभी बताया कि 3 प्रसार गुणांक होते हैं, एक तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और क्या होता है ये अल्फा, क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक, ये क्या होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ये क्या होता है आयतनीय प्रसार गुणांक। कोई भी प्रसार गुणांक हो, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें क्या होगा पर डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड, कहाँ है पर बोले तो प्रति। ओके, तो ऑप्शन डी इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसरिया गुणांक होगा। तो देखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया, ये बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको आना चाहिए जो अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, मैंने आपको बताया ए रेशियो अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, इसमें जो संबंध होता है 1:2:3। ओके, 1:2:3। इसमें क्या पूछा, बीटा और गामा में रिलेशन पूछा है ना। तो देखिए बीटा और गामा में पूछेगा तो लास्ट के दो ले लेना, तो क्या हो जाए 2:3 है ना। तो बीटा और गामा तो क्या पूछ रहा है आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि बीटा और गामा में जो रेशियो वो कितना है 2:3, कितना है 2:3। ओके, सी बीटा और गामा में जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है ना। तो बीटा और गामा, या तो गामा और बीटा में रेशियो पूछे तो कितना हो जाएगा 3/2। रेशियो का मीन्स क्या होता है अपन, हमें तो गामा चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा। ओके, यानी कि गामा की जो वैल्यू होगी वो बीटा की 3/2 गुनी होगी। ओके, गामा की जो वैल्यू होगी बीटा की क्या होगी 3/2 गुनी होगी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये भी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ के 1 घन मीटर आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस का ताप आयतन में वृद्धि बराबर होगी। ओके, तो देखिएगा गामा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डेल्टा बी ओवर बी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो बोला 1 घन मीटर आयतन में, यानी कि बी इनिशियल कितना दे दिया 1, और 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि
डिग्री से ताप बढ़ाने में आयतन में वृद्धि होगी, है ना। तो क्या बोले, किसी पता है कि 1 घन मीटर आयतन में 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होगी। ओके, तो यानी कि डेल्टा वी ओवर बी इनिशियल कितना है 1 और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ाया, एक फर्दर सॉल्व किया तो हम लोगों ने क्या मिल गया, गामा इक्वल टू डेल्टा वी इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्या होगा, आयतन प्रसार गुणांक की क्या होगी, बराबर होगी। ओके, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। किसी लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, त्रिज्या में, क्षेत्रफल में, आयतन में या फिर द्रव्यमान में। तो देखिएगा, आपको बता दें थोड़ा सा, जो हमारी गेंद होती है, ठीक है, जो हमारी गेंद होती है, थोड़ा बता, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जो हमारी जो बॉल होती है, ठीक है, जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना, या फिर कोई लोहे की गेंद लिया इन्होंने, वो 2D होती है 3D। तो याद रखिएगा, जो हमारी बॉल होती है वो सॉलिड होती है ना, तो ये 3D होती है। क्या होती है, 3D होती है, XYZ। और जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, जब इसका हम टेम्परेचर, याद रखिएगा, जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी हर एक डायमेंशन एक साथ इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि इसका लेंथ डायरेक्शन बढ़ा तो ब्रेथ नहीं बढ़ रही है, तो हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है। याद रखिएगा, हर एक डायमेंशन बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ द बॉडी एक्सपेंड्स। ओके, तो इसकी एक्स डायमेंशन भी बढ़ेगी, वाई भी बढ़ेगी और जेड भी बढ़ेगी। तो 3 डायमेंशन किस में होती है, वॉल्यूम में, तो ओबियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि किस में भी ज़्यादा होगी, आयतन में। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो बॉल होती है वो क्या होती है, 3D होती है। 3D यानी कि उसमें तीनों डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट किस में होती है, आयतन में। तो आयतन ज़्यादा होगा तो ओबियसली क्या होगी, उसकी प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, अब वो थर्मल एक्सपेंशन पर आधारित है। ओके, तो रेल की 2 पट्टियों के मध्य जोड़ पर कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि गर्मियों के दिन में क्या होता है, गर्मियों के दिन में वो एक्सपेंड करती है। क्यों, गर्मियों के दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो क्या होगी, फैलती है। तो धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर क्या होती है, संकुचित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सी, आगे किसी ताप पर कांसे की पेन की गुटके में लिखे गए पेट्रोने पर तोड़ी होती है तो सही पेट्रोने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ओके, इसके पीछे का जो लॉजिक मुझे नहीं पता है तो कृपा करके याद कर लें। ओके, हमें क्वेश्चन को स्किप करना भी आना चाहिए, जो मुझे पता है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, द्रव के वास्तविक एवं आभासी प्रसार के गुणांकों में सही संबंध है। तो इसमें भी जो ऑप्शन बी है वो क्या करंट होगा, यानी गामा सफिक्स R इक्वल्स टू गामा सफिक्स A प्लस गामा सफिक्स G इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, किसके लिए, लिक्विड के लिए होगा, ठीक है। ओके सी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी झील की सतह का पानी जमने वाला है तो झील के अध स्तर में जल का तापमान होगा। ओके, तो आपने देखा होगा सर, देखो या फिर आपने मोबाइल में भी देखा होगा कभी कभी, है ना, कि जो झील होती है उसमें उसके ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो नीचे वाली लेयर होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए मछलियाँ क्या होती है, जीवित भी रह जाती हैं। ओके, याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऊपर तो बर्फ जमी होती है। ओके, क्यों, ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नीचे का जो लेयर होती है वो क्या होता है, उसमें लिक्विड होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो नीचे बर्फ नहीं होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो होती है वो क्या, ऊष्मा की कुचालक होती है। ओके, याद रखिएगा, बर्फ क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो झील के अधिस्थल का ताप कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वाला। ओके, सो आगे देखिएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वेल, आज के वीडियो में इतना ही, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक नेक्स्ट आगे की MCQ भी करवाए जाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। और 1-2 क्वेश्चन चलो फिर भी बता देते हैं। ऊष्मा मापी का जल तुल्यांक होता है, जल तुल्यांक को याद रखिएगा, W से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट, मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट। M क्या है, मास, और C पर क्या है, स्पेसिफिक हीट। ओके, थोड़ा और बता दें, स्पेसिफिक हीट का अगर आपको पर्टिकुलरली फॉर्मूला पूछा जाए तो होता है क्या, चेंज इन हीट अपॉन M मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बता दें, याद रखिएगा।
स्पेसिफिक हीट से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सी बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू ओवर एम मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इसमें स्पेशल केस लगे होते हैं। स्पेशल केस में केस नंबर 1 जो पढ़ा जाता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, तो समथिंग अपन 0 क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे जब 0 प्लेस करेंगे तो समथिंग अपन 0 क्या होगा, इन्फाइनाइट। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी कि समतापी प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, अनंत होता है। ओके, इसमें दूसरा केस जो पढ़ने को मिलता है क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु, किसके लिए, रुद्धोष्म। याद रखिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम में ना तो हीट हम प्रोवाइड कर पाते हैं और ना ही क्या होते हैं ले पाते हैं, यानी कि चेंज इन हीट क्या होता है, 0 होता है। जब इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे क्यू ऊपर है ना चलने क्यू, तो क्या 0 अपन समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्पेसिफिक क्या होगा 0। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है, समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः है, तो क्या होगा अनंत तथा 0। क्यों, क्योंकि पहले क्या है विशिष्ट ऊष्मा किसकी, समतापी के लिए, और दूसरी क्या है रुद्धोष्म के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर सपोज यहाँ पे इसमें पूछा होता है कि रुद्धोष्म तथा समतापी प्रक्रम हेतु विशिष्ट ऊष्माओं का मान होगा, तो क्या होगा 0 तथा अनंत होगा। ओके, तो देख लेना कि पहले कौन है। ओके, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो हम लोग एग्जाम में कर बैठते हैं। ओके, अच्छा, एक मेयर सूत्र और आपने पढ़ा। और विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती हैं, जो सी होता है ना विशिष्ट ऊष्मा 2 एक तो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हिंदी में बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थिर दाब पर और एक स्थिर आयतन पर। ओके, अच्छा, इसी में साथ ही साथ विशिष्ट ऊष्मा पर आधारित एक मेयर फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मेयर फार्मूला क्या होता है, सी सफिक्स पी और सी सफिक्स पी का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ओके, याद रखिएगा, है ना। और थोड़ा बता दे देखिएगा। अच्छा, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू होती है 2 होती है। क्या, एक तो होता है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ATM लीटर पर मोल केल्विन। ओके, अच्छा, जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, थोड़ा अच्छे से लिख दें, 8.341 जूल पर मोल केल्विन। ओके, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको रटा हुआ ना चाहिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा और बता दिया, याद रखिएगा। जो मैंने अभी मेयर फार्मूला बताया, कौन सा फार्मूला, मेयर फार्मूला, हिंदी में भी मेयर सूत्र बोलते हैं। ओके, मेयर फार्मूला होता क्या है, सी सफिक्स पी पहले होता है सी सफिक्स बी बाद में होता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। ओके, अच्छा, और इस सूत्र में याद रखिए सी सफिक्स पी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, सी सफिक्स बी। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, तो अब आइए निम्नलिखित में सही कहते हैं तो सी सफिक्स पी इज अ ग्रेटर देन सी सफिक्स बी। ओके, वेल आज की और कैलोरी मापी बने होते हैं, थोड़ा ये भी देख लो भाई किससे बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, धातु के, रिमेंबर दिस। और जल तुल्यांक का मान, जल तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसे डब्ल्यू से प्रदेश का डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक हीट। ओके, वेल आज की इस वीडियो में इतना ही, है ना। वेल आपको जैसा भी लगा, जैसा भी इस वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और आपको और भी एमसीक्यू चाहिए इस टॉपिक पर रिलेटेड तो भी बता दीजिए। ओके, वेल जैसे वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। ओके, सो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।